Hello. जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। Good morning, everyone. So today is our fourth lecture, and today we'll do adjective and adverb. So let us start the class with a song. I request all of you to sing along on a muted mode. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Okay, so let us revise our previous class. So what we have done in the last class was types of pronoun and type of verb. So, so do you remember what were the types? Personal, demonstrative, reflexive, relative, indefinite, interrogative. All these types of pronouns we have discussed in the previous class. And for verb सुनैना जी, also. Hello. आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो एक बार ईयरफोन लगा करके थोड़ा सा ठीक करिए, शायद सही आएगी है। Okay, okay. जी जी। Audible? जी Hello. बोलिए कुछ। ओके सो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ सही आ रही, थोड़ा सा आवाज मतलब कि थोड़ा सा मोटी टाइप की आ रही है। एक बार ईयरफोन लगा के बोलिए, तो एक ईयरफोन हटा करके। ओके, ईयरफोन हटा के देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, अभी आ रही है सही से? हाँ हेलो। बोलिए कुछ एक बार। अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्ब। हाँ अब सही आ रही है। अच्छा, अब सही आ रही है। ओके, ठीक है। जी जी। ओके, in the last class, we have discussed about types of verb, transitive and intransitive. So let us do some exercise to see how much we are remembering today. So they have checked the arrangements, dash. So what do you think? What is the, yes, themselves, yes, they, themselves. So what type of pronoun it is? What type of pronoun it is? I am asking about the type of pronoun. Reflexive. Reflexive. It is reflexive pronoun, not relative. Reflexive, yes. Second one, this is the boy. Dash is admired by all the teachers. So what is the correct pronoun here? Who is admired? We are in this sentence. Who will come, because it is about the boy. This is the boy. Dash voice is always full of joy. Whose, yes. So in this इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि अब लड़के की आवाज के बारे में बात हो रही है, तो पोजेसिव है ना, whose आएगा इसमें. दिस इज द बॉय whose voice. फर्स्ट वाली सेंटेंस में डायरेक्टली बॉय की बात हो रही थी. दिस इज द बॉय who is admired. Okay, next one, fourth. This is the boy dash I met yesterday. Whom I met सुनैना जी, आप yesterday. ईयरफोन ही लगा लीजिए, ईयरफोन ही इसमें तो और बेकार आ रही है। Okay, अभी आ रही है. This हाँ is जी the हाँ जी, boy ईयरफोन। dash I met yesterday. Whom I met yesterday. Yes, it is correct. So fifth one, dash should enjoy the beauty of nature. हाँ, everybody. Yes, everybody is correct. Okay, what type of pronoun it is? Can you identify the type of pronoun? Okay, it is indefinite. है ना? We are talking in general. Yes, yes, correct, Khushbu. So second, seventh one, dash has taken my pen. Yes, sixth one is what?
What is correct? Seventh one. Can you answer? Dash has taken my pen. Who has taken my pen? Yes, it is correct. Who will come? Yes. It is interrogative pronoun. So now eighth one. Dash are you playing? What are you playing? What are you playing? So it is what will come. It is correct. So next one. It is about verb. You have to identify the verb in this sentence and try to identify whether it is transitive or intransitive. So I am planting a mango tree. Planting is verb here. हाँ, अगर मैं इस सेंटेंस में क्या लगा दूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है ना कि मैं क्या प्लांट कर रही हूँ, मैंगो ट्री. So it is transitive verb. Yes, correct. So next one, 10. The girls study in the school. लड़कियाँ स्कूल में पढ़ती हैं. Study is correct. So what type of verb it is? Okay, so it is not transitive. It is intransitive. क्यों? क्योंकि अगर इस सेंटेंस में मैं क्या लगाऊं, the girls study in the school. अगर मैं क्या लगाती हूँ, study पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? क्या इस सेंटेंस में इसका आंसर है? क्या पढ़ती हैं? इसका आंसर नहीं है ना? तो इसका मतलब ये intransitive verb है. Okay, so I hope it is clear कि transitive verb और intransitive verb क्या होता है. अगर सेंटेंस में क्या लगाते हो वर्ब के साथ, क्या वर्ब में क्या लगा देते हो, तो आपको क्या पता चलेगा. अगर आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो इंट्रांजिटिव है. ओके, so there are few exercises on verbs here. So first one, what you have to do in these exercise, you have to first identify the verb, and then if you remember, we also did present, past form, na? Three forms of verb: present, past, past participle. We have done three forms of verbs. So here you have to convert it into second form. Hello? So can you all hear me? Hello? जी आ रही है. Okay. So first one, she sings sweetly. She sings sweetly. So what is verb here? Sing. Yes, sing is present. So if you want to convert it in past, past मतलब जो हो गया है ना? तो sing का क्या होता है? Sang. Yes, sang is correct. Yes, Sonali, sang is correct. So she sang sweetly. So past tense में ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को. Okay, second one. He spends his time in idleness. Spends है ना? इसमें spends जो है वो present form में है verb की. So what will be the past form? Spent. He spent his time in idleness. Spent. Okay, spent is the past form. Now the wind blows furiously. Yes, what will be the past form of blow? Blew. It will be blew. Blown is the third. It is past participle. It is not second form. Blew is correct. BLEW. Blew is correct. So the wind blew furiously. Okay. So this is the past. This is the sentence with past verb form. So next one, the old woman sits in the sun. Sat. Yes, sat is correct. The old woman sat in the sun. Sat, sit, sat, sitten. So you have to remember three form of the verb. Looking at any table, you can find it on any English grammar book. So next one, my master bids me work hard. Okay, we have left fifth one. He feels sorry for his fault. Felt. Yes, felt is correct. Yes, he felt sorry for his fault. Feel, felt. Yes, correct.
Now, sixth one, my master bids me work hard. Bade is correct, yes. So here work is not verb. See, in some sentences work is a verb, but here work is not used as a verb. Here only verb is bid. Okay. So my master bids me work hard. Okay, so bid का bade हो जाएगा. Bade, bidden. Okay, bade is correct. I do it of my own free will. I did it. Yes, I did it. Do, did, done. So did is the past form. Now eighth one, I forget his name. I forgot his name. Forgot is correct. Yes. Forget, forgot, forgotten. Yes. Forgot. Ninth one, a portrait of Mahatma Gandhi hangs on the wall. Hangs. It is not hang. Hung is correct. Okay. So next one, he goes to school. He went to school. Yes, correct. Okay. So with this, we move to our next part of speech, the adjective. So if you remember, I have given you a brief summary. What are adjectives? So here I will tell you a detailed description about the adjective. So what is the definition here? An adjective is defined as a word used with a noun to add something for its meaning. मतलब एडजेक्टिव या फिर विशेषण जिसे कहते हैं हम, विशेषण क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो कि संज्ञा के भाव में कुछ ऐड करते हैं, है ना, कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं संज्ञा के बारे में, संज्ञा की मीनिंग के बारे में या फिर संज्ञा के बारे में. जैसे कि यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, सीता इज अ क्लेवर गर्ल. तो किसकी बात हो रही है, किस नाउन की? कि सीता इज अ क्लेवर गर्ल. सीता कैसी लड़की है ना. एक और इन्फॉर्मेशन पता चल रही है हमें, सीता एक लड़की है. सीता एक लड़की है, लेकिन सीता एक कैसी लड़की है. तो कैसी, जब आप ये करते हो कि कोई भी नाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसमें अगर आप व्हाट काइंड या कैसा, कैसी, ये क्वेश्चन पूछते हो, जो आपको आंसर मिलता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. ओके. सीता इज अ क्लेवर गर्ल. तो क्लेवर इज एडजेक्टिव हियर. नाउ नेक्स्ट वन, आई डोंट लाइक दैट बॉय. तो इसमें आप देखो कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है. विच बॉय. अब इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो लड़का, मुझे लड़का पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैं क्या कह रही हूँ? दैट बॉय. तो अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछो तो कौन सा लड़का, तो द आंसर विल कम दैट बॉय. ओके. सो दैट इज एडजेक्टिव हियर. तो नेक्स्ट कि अगर आप क्वांटिटी वाइज पूछो कि कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग है, वो कितनी क्वांटिटी में है, अगर आप पूछो ही गेव मी 5 मैंगोज. इसका क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी मैंगोज. उसने मुझे आम दिए, कितने दिए, कितने आम दिए, कितने आम. तो जब क्वेश्चन पूछोगे तो जो आंसर मिलेगा या तो कैसा है, या कितने हैं, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में पूछो तो कितना टाइम, और कौन सा है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप नाउन के लिए पूछते हो, नाउन के लिए, तो जो आपको आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है. तो देयर इज, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो इसमें देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो इसमें लिटिल जो है वो क्या बता रहा है कि कितना, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कितना टाइम है प्रिपरेशन का, तो आंसर क्या आएगा? लिटिल टाइम. लिटिल. There is little time for preparation. So next one, the lazy boy was punished. Lazy क्या बता रहा है? बॉय के बारे में, है ना, लड़के के बारे में बता रहा है कि
द बॉय इज लेजी, है ना, इस सेंटेंस से पता चल रहा है। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। तो बॉय का गुण बता रहा है, ये एट्रीब्यूट बता रहा है ये वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है लेजी। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा डिफरेंट टाइप से कि कैसे कैसे एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। तो कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, तो इसमें आपको क्या, कोलकाता एक शहर है, ठीक है, लेकिन कैसा शहर है, उसकी क्वालिटी, उसका गुण बता रहा है कैसा शहर है। कुछ भी हो सकता है, इज़ अ बिग सिटी, इज़ अ लार्ज सिटी, इज़ अ गुड सिटी, कुछ भी आप क्वालिटी उसकी बता सकते हो। तो जो क्वालिटी बताएगा उस कोलकाता के बारे में जो वर्ड, वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सो नेक्स्ट वन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो वो एक आदमी है, लेकिन वो कैसा आदमी है, ईमानदार। तो ऑनेस्ट। ओके, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। इसमें क्रो की क्वालिटी, जो क्रो की क्वालिटी है वो क्या है, फुलिश ओल्ड, कि वो बहुत बूढ़ा है और ही इज़ वेरी फुलिश, है ना। तो क्वालिटी पता चल रही है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, फुलिश ओल्ड, यस। तो नेक्स्ट वन, दिस इज द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, देखो इस सेंटेंस में इंग्लिश जो है वो बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। कि अब मैं बता रही हूँ कि दिस इज द ग्रामर ऑफ, अब मैं बता रही हूँ कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। किसकी, ये ग्रामर है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना। ये भी ग्रामर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश ऐड कर रहा है कि ग्रामर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की होती है। अब मैंने यहाँ पे ग्रामर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर। ओके, तो ऐसे इंग्लिश इसमें प्रॉपर भी है, प्रॉपर नाउन भी है। तो ऐसे वर्ड्स को जो कि प्रॉपर नाउन भी होते हैं और नाउन और सेंटेंस में नाउन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये सारे थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हियर आप क्वेश्चन पूछोगे कितने, दिस इज अबाउट क्वांटिटी, है ना। आप क्वेश्चन पूछोगे कितने, जो भी है वो कितना है। तो आई एट सम राइस, आपने चावल खाए, लेकिन आपने कितने चावल खाए। तो आप बोल रहे हो आई एट सम राइस, सम। ओके, तो सम व्हाट इज हियर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम। ओके, तो नेक्स्ट वन, ही शोड मच पेशेंस। तो उसने धैर्य दिखाया, धैर्य दिखाया, कितना धैर्य दिखाया। इसमें भी एक तरीके से ये क्वांटिटी अगर आप देखो कि सम, मच, ये इसे आप नंबर में नहीं, ये इनडेफिनिट क्वांटिटी है, इनडेफिनिट, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर नहीं, ये इसको आप वे या फिर गिन नहीं सकते, है ना। ही शोड मच पेशेंस, तो मच, यू हैव नो सेंस। तो आपके पास मतलब इसमें नो है ना, यू हैव नो सेंस। कितनी सेंस है, नो, नहीं है ही नहीं सेंस। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कितना ध्यान रखिए, बहुत सारा, ग्रेट, है ना। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, कि इस साल ज़्यादा बारिश हुई नहीं, है ना। तो रेन कितनी, तो क्या कैसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन, देयर हैज़ नॉट बीन, कितनी बारिश हुई, देयर हैज़, कितनी बारिश नहीं हुई इस साल। तो सफिशिएंट रेन नहीं हुई, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, है ना। तो सफिशिएंट यहाँ पे एज अ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हो रहा है। ओके, तो नाउ ये आप पीछे अगर ध्यान दो तो राइस, पेशेंस, सेंस, है ना, ये सारे जो नाउन है, राइस, पेशेंस, सेंस, हेल्थ और रेन, ये सारे आप इनको गिन नहीं सकते,
है ना, इसीलिए ऐसे एडजेक्ट मतलब जो क्वांटिटी है इसकी हम ऐसे वर्ड से बता रहे थे, सब, मच, नो, ग्रेट, सफिशिएंट, है ना। लेकिन अगर आप काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स थे, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे कि कैट, कैट गिन सकते हो आप कि 2 कैट हैं या 3 कैट हैं या 4 कैट्स हैं। तो उसके लिए क्या करते हो आप कि काउंटेबल नाउन्स के लिए ऐसे यूज होते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। इसमें देयर आर टू थिंग्स कि एक तो कितने लोग हैं, कितने लोग जो भी काउंटेबल है, लोग कितने वस्तुएं या व्यक्ति हैं जो कि काउंटेबल है, जिन्हें आप गिन सकते हो। या फिर क्या हो सकता है कि मतलब ये भी हो सकता है कि ऑर्डर क्या है। जैसे अगर कोई किसी रो में कुछ लोग खड़े हैं तो किस ऑर्डर में खड़े हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है। तो ये ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऐसे नंबर, ऐसों को भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं जिनसे ऑर्डर पता चलता है किसी सीक्वेंस। ओके, तो लेट अस सी द एग्जांपल्स। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखो, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, ऑल्दो वी कैन प्रिसाइजली काउंट कैट्स। ओके, अब मैं काउंट कर सकती हूँ कैट्स, लेकिन अगर मैं इंडेफिनेटली बोलना चाहती हूँ तो मैं ऐसा यूज़ करती हूँ कि कुछ कैट्स नहीं वहाँ पर, कुछ कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ कैट्स को ठंडा पानी पसंद होता है ना। फ्यू, तो इसमें भी नंबर में भी आई कैन यूज इनडेफिनेट वर्ड्स। okay, few. So either I can also use 2 cats, but here I am generalizing. मैं ये जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी कि दो दो बिल्लियों को ही कोल्ड वाटर पसंद है। तो आई विल से कुछ बिल्लियों को कोल्ड वाटर पसंद है। So it is indefinite numeral adjective. Okay. So the next one, all men must die. See here, all. What is all here? This is also indefinite. Although man को हम वो कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि there are two men या two men या फिर 3 men या फिर 4 men, we can count. But here we are using it in a generalized form. So here we are using all. Okay, all. Sunday is the first day of the week. So here order. ऑर्डर में डेफिनेट मतलब आप बहुत डेफिनेटली बोल रहे हो कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक है संडे, है ना। तो लेकिन एक ऑर्डर भी आ रहा है उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर होते हैं, इन्हें ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेफिनेट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, 5 भी बहुत डेफिनेट है, तो डेफिनेट हो गया ये। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं कि जब आप क्या करते हो कि ऐसे बोलते हो कि हर एक स्टूडेंट को ये होमवर्क करना है, हर एक स्टूडेंट को, मतलब आप इकट्ठे से, आप किसी समूह से बात कर रहे हो लेकिन आप तब भी इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर रहे हो। हर एक, अगर आपको ऐसे पॉइंट आउट करना है तो ईच, ऐसा यूज होता है। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़का अपने टर्न लेगा, अपनी बारी लेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट वन, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। कोई भी नहीं सही, कोई भी नाइदर का मतलब कोई भी नहीं। ओके, तो सुनैना जी, पीपीटी कट गई है, एक बार चेक कर लीजिए पीपीटी। ओके, लग रहा है फिर से उसको रिमूव करके करना पड़ेगा।
हाँ अब शो कर रही है कीथ। Okay. So here, so we were talking about definite, indefinite और distributive. तो जैसे अगर आप एग्जैक्टली नंबर्स की बात करते हो 1 2 3, या फिर ऑर्डर की बात करते हो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, नंबर या फिर ऑर्डर की बात करते हो तो वो डेफिनेट हो जाते हैं, मतलब आप डेफिनेटली बता रहे हो कि कितना क्या नंबर है किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग का। ओके, तो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट क्या, जैसे आप जनरली बोल रहे हो ऑल ऑफ यू शुड कम, है ना, नो, मैनी, फ्यू, तो ये बहुत जनरल है, जनरल डिनोट कर रहे हो आपके, जैसे फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, sundry. So all of these are indefinite, but we can use it for countable nouns. Okay. Distributive we if we are pointing to each individual to मतलब अगर आप एक समूह में एक किसी को वो कर रहे हो, हर एक को कर रहे हो, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूजेशन? So accusation is what you are talking of, which context? I'm not understanding. Accusation, we'll discuss it later after I complete all this. So next, demonstrative adjectives. Okay, so here what you will see, if you are pointing to a particular person or thing, what is happening? If you are pointing towards a person or thing, तो आपको याद होगा कि प्रोनाउन में भी ऐसा होता है ना कि पॉइंट करने के लिए यू यूज दिस, दैट, दोज, दीज, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं ऐसे, दिस, दैट, दीज। आप लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक सेंटेंस देखते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। तो दिस बॉय, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मतलब लड़का इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये लड़का है ना, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बॉय के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड की कि दिस, ये है ना, लेकिन अगर ये होता कि दिस इज अ बॉय, अगर नाउन की जगह पे यूज होता दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय हु इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, दिस इज अ बॉय, दिस इज द बॉय हु इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, अगर ऐसे होता तो वो प्रोनाउन की तरह यूज होता दिस। ओके, बट हियर दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है क्योंकि बॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये बॉय इसमें नाउन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, ये लड़का, तो दिस इसमें एडजेक्टिव है। ओके, सो नेक्स्ट वन, आई हेट सच थिंग्स। तो आई हेट सच थिंग्स, सच ऐसी चीजें, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं करती। तो दीज मैंगोज आर सोर, दीज मैंगोज, अब ये आम, तो आम नाउन, आम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, ये आम है ना, तो इस ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये ऐसे होता कि दीज आर द मैंगोज, these are the mangoes that I brought from the market, that I brought from market, so these are the mangoes। अब उस सेंटेंस में क्या, these जो है वो नाउन की तरह, नाउन की जगह पे यूज हुआ है ना, these are the mangoes मतलब नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है, तो वहाँ पे वो प्रोनाउन है these, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि मैंगोज के बारे में बता रहा है, these, ये मैंगोज। ओके, तो नेक्स्ट वन, those rascals,
सेम थिंग कि रास्कल्स, वो रास्कल्स, ठीक है. दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट. सेम थिंग, दैट गर्ल, वो गर्ल, वो लड़की है ना. So these are all demonstrative adjectives. So now another type is interrogative adjective. So आपको याद होगा कि प्रोनाउंस भी होते हैं ऐसे जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना. इफ यू रिमेंबर कि व्हाट, विच, हुज, यू हैव सीन ऑल दीज इन प्रोनाउन एज वेल. सो हियर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. जैसे कि पीछे आपने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव में है डिफरेंस, वैसे ही इंटेरोगेटिव में भी डिफरेंस है. जैसे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस. अगर मैं इसे पूछूं हुज इज दिस बुक, तो दैट इज लाइक प्रोनाउन. सब्जेक्ट की प्लेस पे हुज वो यूज हो रहा है. नाउन, नाउन को डिनोट करता हुआ, नाउन की प्लेस पे, सब्जेक्ट की प्लेस पे ही यूज हो रहा है वो, है ना. नाउन की प्लेस पे हुज इज दिस बुक. तो बट हियर व्हाट इज कि बुक के साथ हुज आ रहा है. तो हुज बुक, तो बुक की विशेषता बता रहा है, किसकी बुक, है ना. बुक के बारे में कुछ ऐड हो रहा है कि किसकी बुक. विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते हम जाएं. तो रास्ता, कौन से रास्ते. अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि विच इज द वे यू आर गोइंग, विच इज द वे यू आर गोइंग, अब उस केस में वो प्रोनाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा. क्योंकि दोनों में यही डिफरेंस है कि कोई नाउन को डिनोट कर रहा है, कोई नाउन को रेफर कर रहा है, और कोई नाउन की विशेषता बता रहा है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, तो इसमें किस तरह का इंसान है वो. तो मैनर, मैनर की मतलब मैनर के बारे में. व्हाट, क्या, किस तरह का, है ना, क्या है वो ऐसे. तो व्हाट जो है वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल. जी ओके, आ रही है, थोड़ा ओके, सा ओके. कट के आ रही है. जी जी, और सही. अच्छा, जी ओके. जी बोलिए. So practice exercise now. Let us do some practice. Here, what you have to do is see in this sentence. He is a man of few words. You have to identify adjective and also tell कि कौन सा type है इसका. Yes, few. Few is correct. Yes. So what type of adjective it is? Uh, mm, this is adjective of number. Okay, not quantity. क्योंकि वर्ड तो हम गिन सकते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. जो क्वांटिटी वाले हैं, जो क्वांटिटी के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो हम गिन नहीं सकते ऐसे नाउन्स को जिनके लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यूज होते हैं. लेकिन जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, वो उनके करस्पॉन्डिंग जो नाउन होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं. तो वर्ड्स को हम गिन सकते हैं. तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके, बट इनडेफिनिट. मैंने 3 केसेस बताए थे ना, इनडेफिनिट, डेफिनिट. इफ यू रिमेंबर, डेफिनिट, indefinite and distributed. So all these are. So every dog has its day. Every, yes, it is adjective of number, correct. So next one, the ship sustained heavy damage. The ship sustained heavy damage. Heavy is correct, yes, correct. So heavy कैसा है, and what type of adjective it is? Yes, yes, it is adjective of quantity. Yes. He comes here every day. Every, yes, every. So it is adjective of number, indefinite, है ना. So next one, I have called several times. Several. Yes, several is correct.
it is adjective of number but indefinite. So which pen do you prefer? Which is interrogative adjective. Several persons were present at the time. Several. Yes, several. So next one, say the same thing twice over. Twice, yes. Adjective of number, correct. So what time is it? What is correct? Yes. He died a glorious death. Glorious is correct. It is adjective of quality. So, yes. Some dreams are like reality. Yes, some is correct. Okay, so this is adjective of number but indefinite. Abdul won the second prize. Yes, second. So second is, it tells you the sequence, some position in sequence. Second, yes, definite. Definite, yes. So next one, I like the little peddler who has a crooked nose. Crooked nose, sorry. Yes, little is correct, but see carefully. Is कोई और भी adjective है क्या sentence में? Crooked, yes. So I like the little peddler. Little and crooked, both are adjective of quality. Okay, who is not adjective? Why do you think that who is adjective here? अगर यहाँ पे who जो है मतलब आप याद करो कि प्रोनाउन में आप यूज करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे यूज करते हो अगर आपको रिपीट ना करना हो। जैसे यहाँ पे बात क्या हो रही है, आई लाइक द लिटिल पेडलर। अब पेडलर के बारे में, द पेडलर अगर सेकंड सेंटेंस में लिख दी, द पेडलर हैज़ अ क्रूक्ड नोज। अब आपको पेडलर को बार बार रिपीट नहीं करना, आप सीधा उसके बारे में रिलेशन कैसे बताओगे, हु हैज़ अ क्रूक्ड नोज। तो हु इज क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ओके। So here let us see कि adjectives कैसे बनते हैं, है ना। फ्रॉम नाउन, मतलब नाउन से या वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं। तो ये फर्स्ट उसमें देखो कि नाउन, बॉय, पूल, किंग, ऑल दीज आर नाउन, है ना। लाव, ग्लोरी, शेम। तो इसके एडजेक्टिव कैसे बनेगा, बॉयश, फुलिश, किंगली, लाफेबल। तो इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से कैसे वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव। तो टायर का टायरलेस, टॉक का टॉकेटिव, सीज का सीजलेस, मूव मूवेबल, ब्लैक ब्लैकिश। तो ऑल दीज आर ओके। So some of you are not clear with some meanings. Okay, boyish, or another one, paddle. Paddle means, okay. So here you see boy, boyish. अब ये मतलब बॉय क्या है, लड़का, लेकिन बॉयश मतलब ही हैज़ अ बॉयश स्माइल। मतलब जैसे बॉय का एट्रीब्यूट, जैसे बॉय में एट्रीब्यूट होते हैं उस टाइप का, मतलब ये वी कैन फ्रेम एडजेक्टिव हियर, बॉय बॉयश, है ना। जैसे मतलब ये एट्रीब्यूटिव है कि बॉय, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से कि
किसी एट्रीब्यूट को लेके हमें कहना कि ही इज बॉयश। तो जैसे किसी बड़े के बारे में बात करें, है ना, एक लड़का है तो लड़के के जैसे एट्रीब्यूट, उसके उसके एट्रीब्यूट्स लड़के जैसे हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज बॉयश। ओके, so next one I think answer is already there. Okay, so fool, foolish. Okay, ऐसे ही कि king, kingly, laugh, laughable, glory, glorious, shame, shameless. So okay, so you can see all of these. There are so many which you can form out of noun, verb and adjective. So here next thing is comparison of adjective. See हम नाउन की तो बताते ही हैं कि विशेषता तो बताते ही हैं नाउन की, है ना, लेकिन कंपैरेटिव मतलब अगर ऐसे जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, राम्स मैंगो इज स्वीट, तो मैंने जस्ट बताया है कि जो राम का आम है वो बहुत स्वीट है ना, जस्ट बता रही हूँ मैं उस मैंगो का एट्रीब्यूट कि मैंगो इज स्वीट। अब नेक्स्ट में क्या कहूँगी कि हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम। अब मैंने कंपैरिजन कर लिया, है तो ये एडजेक्टिव ही, लेकिन अब कंपैरिजन हो रहा है कि हरी का मैंगो ज़्यादा स्वीट है राम से। अब नेक्स्ट वन कि गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें क्या सुपरलेटिव, मतलब सबसे स्वीट है ना, जितने भी हैं आम उनसे सबसे स्वीट है, तो सुपरलेटिव। तो देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। So you can see example, this boy is strong. Simply what I am saying, this boy is strong. ये लड़का ताकतवर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, ये लड़का उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये क्या हो गए कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ओके, so this boy is the strongest in the class. Yes, this boy is the strongest in the class. Strongest is superlative. Okay, so here are some examples see how these comparative and superlative degrees are formed from the positive ones. Sweet, see here, sweet, sweeter, sweetest. तो सिंपली कंपैरेटिव के लिए ER लग जाता है और सुपरलेटिव के लिए EST। सी केयरफुली कि टी के बाद ER एंड EST। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स जिसमें आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के फॉर्म्स क्या होते हैं यू कैन सी हियर। So next one, there are few words where you can see कि they are already ending with E. Okay, so these words are already ending with E, so you don't need to put ER here, you have to put simply R and ST. So E is already present, so you have to put R and ST. Brave, so you have to just add R and it will become braver, and then bravest. Okay, so fine, finer, finest. So likewise, so see all these words, so they are ending with Y. So here what will happen, IER. You will eliminate this Y, and you will replace it by IEST. Okay, so happy, Y gets eliminated. So in place of it, what will come? IER, happiest. So IEST, happy, happier, happiest. Easy, easier, easiest. So here you can see another form, red, redder, reddest. इसमें क्या हो रहा है कि the word जो you can see कि there is something common in all these. See यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लास्ट वर्ड है उससे पहले एक वोवेल साउंड आ रही है ना, E
I, O, I, A, वोवेल साउंड आ रही है इसमें। तो ऐसे वर्ड्स में क्या होता है कि लास्ट वाला लेटर जो है, लास्ट लेटर वो रिपीट हो जाता है, ठीक है, और ई आर लग जाता है, RED, DER, रेडर, रेडेस्ट। बिग, जी रिपीट होगा और ई आर लग जाएगा, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। So these are some rules how to form comparative and superlative degrees from words. Okay. तो अगले एग्जाम्पल में देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें FUL लग रहे हैं, या फिर कुछ वर्ड OUS से एंड हो रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनमें EREST नहीं लगता, उनमें क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर, सबसे सुंदर, है ना। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। So here, so here are a few more examples. Useful, more useful, most useful. Hopeless, more hopeless, most hopeless. So all these are examples of if you are using more and most for comparative and superlative. So so there is one thing important here. See, ये क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं में या किन्हीं भी दो क्वालिटीज में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस, इस एग्जांपल को देखते हैं। रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। और सेकंड सेंटेंस देखो, राम इज ब्रेवर देन हरि। मतलब जब दो व्यक्तियों में कंपैरिजन हुआ तब क्या आया, राम इज अ ब्रेव, सेम है ना ब्रेव। अब अभी हमने देखा था कि ब्रेव का क्या होता है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रेवर नहीं आया, राम इज ब्रेवर देन प्रूडेंट नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में राम की ही बात हो रही है, राम की ही दो क्वालिटीज की बात हो रही है। अगर हम एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की में आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो उसमें कंपैरेटिव EREST नहीं आता, लेकिन क्या आता है, मोर ब्रेव। राम इज मोर ब्रेव, तो मोर यूज होता है उसमें। लेकिन अगर हम दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ब्रेवर, ER आता है, राम इज ब्रेवर देन हरि। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन सी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका बिल्कुल ही फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लेस, लेसर, लीस्ट। ओके, तो इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रूट वर्ड्स। पॉजिटिव जो था, पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, फार, farthest, further, far, further, farthest. Okay. So let us do some exercises. The dash prize was won by Ramesh. So the first or second, anything you can put here. The first prize was won by Ramesh. Yes. Yes, it is correct. Dash flowers are blooming in the garden. You can use many, you can use beautiful, anything. If you are using many flowers, so it will be adjectives of that will be adjectives of number, and if you are using beautiful, that will be adjective of quality. Okay. So this exercise is dash then that. Next one. See, इस सेंटेंस से कैसा लग रहा है, हाँ, हार्डर विल कम, यस, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि इससे ज़्यादा, दिस एक्सरसाइज इज डैश देन दैट, मतलब दिस दैट, है ना। ये एक्सरसाइज उससे क्या, उससे ज़्यादा टफ है या फिर इजी है, इजियर या हार्डर, यू कैन राइट एनीथिंग। सो हियर you will use comparative degree. So second, fourth one, Raju is the dash of all his siblings. Yes, tallest. So
superlative degree will come here. Dash boys are making noise. Some boys are making noise, yes. Radha is dash to her sister. Here I need to tell you one thing. So there are two words, elder and older. So where to use elder and where to use older. So जो elder है वो कब आता है जब आप पर्टिकुलरली व्यक्ति की बात कर रहे होते हो. कभी भी वस्तुओं के लिए elder नहीं यूज करते. लेकिन ओल्डर जो है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आ सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. राधा इज डैश टू हर सिस्टर. यहाँ पे एल्डर आएगा कि राधा अपनी बहन से बड़ी है, तो एल्डर. ओल्डर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना. द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज डैश देन द रेलवे स्टेशन बिल्डिंग. पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी है रेलवे स्टेशन बिल्डिंग से, तो यहाँ पे ओल्डर आएगा. कैन यू सी द डिफरेंस between these two words, elder and older? Okay. So next one, 8. This is a very dash matter. This is a very tough matter. This is a very easy matter. या फिर this is a very serious matter. This is a very important matter. This is a very best matter. Best is not correct here. Serious matter, yes, all are correct. Important, easy, anything is simple. This is a very simple matter. It can also come. Important matter, serious matter. You can write anything. I have brought dash apples. I have brought many apples. I have brought more apples. जब more use करते हो तो किससे ज़्यादा, है ना. कहते हो कि मैं ज़्यादा एप्पल्स लेके आया, लेकिन मोर के साथ आपको कुछ आई हैव ब्रॉट मोर एप्पल्स देन, ये कंपैरेटिव है. मोर जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है. मोर देन दिस, मोर एप्पल्स देन लीची, है ना. कुछ ऐसे यूज होता है मोर. लेकिन यहाँ पे मैनी कैन बी यूज, और यू कैन राइट हियर नंबर्स. आई हैव ब्रॉट 2 एप्पल्स. ओके, एनीथिंग. So, 10th, dash boy saved the child from drowning. Some boy, no. That is correct. Yes, that you can write that here. This boy, yeah, this can also be written. Yes. You can also write here. If I ask you to write adjective of quality, then what you will write here? Brave, yes. Brave boy saved the child from drowning, yes. So 11th, it was a dash beautiful journey. It was a very beautiful journey. It was a more beautiful journey. It was most नहीं आएगा. यू रिमेंबर कि हमेशा जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हमेशा द यूज होता है. यहाँ पे अ यूज हो रहा है ना. इफ यू रिमेंबर आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्रीज में अगर आप मोस्ट यूज कर रहे हो तो उसके आगे द आना चाहिए. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी, तो द आएगा वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे अ है तो मोर कैन कम हियर. It was a more beautiful journey. This is incomplete, but you can write it here. It was, अगर unforgettable लिखते तो it was no, but unforgettable cannot come here. It was a very beautiful journey. Yes. So, there are dash butterflies in the garden. There are many butterflies, there are some butterflies, all are correct, yes. Okay, I think we should end here. We'll discuss adverb in our next lecture. So if you have any doubt, you can ask now.
Hello. If you have any question, you can ask Ma'am, I have जी question. in the comment box. Yes.